Hello friends, welcome to the channel Assemble to Learn. Friends, in this video I solved question number 81 to 90 of previous year PGT physics paper, that is KVS 2018. Already I completed question number 71 to 80 in my last video. अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा. So let's start from question number 81. Question number 81 is, particle is moving with constant speed along a circular path as shown in the figure. When the particle is at point P, that is 0, 1.5, its velocity is minus 3 meter per second I cap. Its velocity and acceleration at point Q. हमें point Q पे उसका velocity and acceleration find out करना है. As the particle is moving with a constant speed, मीन्स उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम होगा, बस उसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा. तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी दैट इज माइनस 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप. देन वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड इज सेम, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, but direction is different. At P this is at minus I cap direction, but at point Q this is at plus J cap direction. That's why 3 meter per second J cap. And what is about acceleration? Acceleration at Q, acceleration का formula होता है v square by r in circular motion. That's why that is v square by r. तो v तो यहाँ पे 3 था, 3 square 9 divided by 1.5 radius. Then this our answer is 6 meter per second square. And here particle possesses only centripetal acceleration which is directed towards center. Hence acceleration is minus 6 meter per second I cap. Okay, which is our option number 1. 1 is correct. So next is our question number 82. Question number 82 is, 2 point charges small q and minus 2 small q are kept r distance apart. A third unknown charge q is kept at 3r distance from minus 2q charge as shown in the figure. For the potential energy of the system to be 0, q equals. तो ये जो फिगर दिया गया है, यहाँ पे एक a पॉइंट पे q है, b पॉइंट पे माइनस 2q, c पे कैपिटल q है, a एंड b का बीच का डिस्टेंस स्मॉल r एंड b एंड c के बीच का डिस्टेंस 3r है. तो हमें जब पोटेंशियल एनर्जी, होल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, मीन्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तो मतलब कब होगा ये, कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या होगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू बी 0, तो हम अभी कंसिडर करेंगे जितने पेयर ऑफ चार्जेस पॉसिबल है उनका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए. तो फर्स्ट हम लेंगे स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस हो गया 4r, तो के क्यू बाई 4r प्लस फिर लेंगे स्मॉल क्यू and minus 2q, that is kq minus 2q by r. Then minus 2q and capital Q, k minus 2q q and उनके बीच का डिस्टेंस 3r equal to 0. By solving we get capital Q is equal to minus 4.8 q. That is option number 2 is our correct answer. Next, question number 83. A ball of mass 100 grams suspended from a spring executes SHM with a period of 3 seconds and amplitude 12 cm. The ball starts from the extreme position. At t equal to 0. Displacement of the ball after 1 second will be. यहाँ पे बॉल एक्सट्रीम पोजीशन से उसका स्टार्ट हो रहा है SHM, तो हम SHM का जो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए उसको हम लेंगे y इक्वल टू a cos omega t, where y is displacement, a is amplitude, omega is 2 pi by t, where t is time period. उसका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, मीन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं ऐसा. तो क्वेश्चन में दिया गया है एम्पलीट्यूड इज 12 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगा, t को हम 1 सेकेंड पुट करेंगे तो y 1 सेकेंड इज 12 cos 2 pi by 3 1, cos 2 pi by 3 होता है minus 1 by 2, that is our answer is minus 6 centimeter. Minus negative sign represents that below mean position. That is our option number 4. 6 centimeter below mean position. Displacement of ball after 1 second will be 6
6 centimeter below mean position. Okay. Next, question number 84. A heavy nucleus at rest breaks into two parts, A and B, moving with velocities in the ratio 8:27. The ratio of the radii of the parts assumed to be spherical. तो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ रेडियस के रेशियो फाइंड आउट करना है. वेलोसिटी का रेशियो गिवन है, तो हमें पता है वी ए divided by VB is 8:27, 8/27. Using conservation of momentum is m1v1 equal to m2v2. तो यहाँ पर हम लेंगे ma_va is equal to mb_vb, that is ma divided by mb is equal to 27/8. As we know, in a nucleus, radius is r, that is r is r0 a to the power 1/3, where a is atomic mass. तो यहाँ से हमें आर ए डिवाइडेड बाई आर बी मिल जाएगा. आर ए डिवाइडेड बाई आर बी इज इक्वल टू एटोमिक मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई एटोमिक मास ऑफ बी होल टू द पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू 27/8 होल टू द पावर 1/3, एंड आवर आंसर इज 3:2, which is option number 3. Next, 85. A water drop of radius 10 mm is split into 64 drops if the surface tension of the water at the temperature is 7.2 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. The increase in surface energy. Surface energy क्या होता है? Surface energy होता है surface tension into surface area. तो यहाँ पर हमें रेडियस गिवन है, दैट इज 10 mm, तो 10 to the power minus 2 meter splits into 64 drops. That's why what is our n value is 64 and surface tension is 7.2 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. If we use volume conservation, then 4/3 pi r cube is equal to 64 times of 4/3 pi r cube, जो 64 ड्रॉप में डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया उनका वॉल्यूम. तो हमें मिल जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/4. तो सरफेस एनर्जी क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू एरिया. तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी क्या होगा? सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल. तो हम पुट करेंगे सरफेस एनर्जी फाइनल होगा 64 pi r square t, 64 pi r square t minus 4 pi r square t. By solving we get 12 pi r square t, and if we put the value, that is pi 3.14, capital R's value is 10 to the power minus 2 उसका स्क्वायर, एंड सरफेस टेंशन इज तो गिवन था 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो हमें फाइनली मिल जाएगा 0.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल, जो कि बन जाएगा 0.27 मिली जूल. तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज electrons charge is small and electrons drift speed is also very small, yet we obtain large amount of current in a conductor because means इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल होता है, ड्रिफ्ट स्पीड भी बहुत छोटा होता है, फिर हम कैसे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलता है इन ए कंडक्टर. तो ये तो हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज एनॉर्मस, या इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज एनॉर्मस. ये होगा, देखिए. हाँ, करंट होता है, हमारा करंट होता है I इज इक्वल टू NEA/VD, वेयर E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नियरली इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज नियरली इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड. एंड N होता है स्मॉल n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज नियरली इक्वल टू 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब. तो एज इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज एनॉर्मस, मतलब यहाँ पता चल रहा है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिल जाता है. क्वेश्चन नंबर 87. An electron is moving in the xy plane along the positive x-axis. There is a sudden change in its path due to the presence of electric and/or magnetic field beyond a certain point P, as shown. The curved path lies in the xy plane and is found to be non-circular. Which of the following combination of electric field E and magnetic field B is possible? मतलब ऑप्शन देखना है. हाँ, ये एक पॉइंट ऐसे जा रहा था, P पॉइंट को पहुंचने के बाद वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया. तो ऑप्शन क्या है? हाँ, यहाँ पे दिया गया है कि
फाउंड टू बी नॉन सर्कुलर, मतलब कर्व पाथ जो मिला वो नॉन सर्कुलर मिला. नॉन सर्कुलर मीन्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट. ओके, सो ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि नॉन सर्कुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है. ऑप्शन नंबर 3 ये भी नहीं होगा. तो अभी बचा ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4. इन दोनों में से क्या होगा हमें चेक करना है. एज द कर्व पाथ इज नॉन सर्कुलर, कर्व पाथ इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर एफ नेट क्या होता है. एफ नेट होता है पार्टिकल पी का नेट फोर्स होगा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी. तो अगर हम ऑप्शन 2 को चेक करें तो वहाँ पे ऑप्शन 2 पे देखेंगे तो ई का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्स आई कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप है. तो हम इसे पुट करते हैं. एफ नेट हमें मिलेगा क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू विद इन ब्रैकेट वी आई कैप क्रॉस, हाँ वेलोसिटी इज अलोंग एक्स डायरेक्शन तो वी को वी आई कैप ही लेंगे, क्रॉस जेड के कैप एंड एक्स आई कैप. क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें फाइनली मिलेगा एफ नेट इज इक्वल टू क्यू एक्स आई कैप माइनस क्यू वी जेड जे कैप. इससे पता चल रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन. आई कैप है एंड जे कैप है. अगर हम ऑप्शन 4 देखते हैं, ऑप्शन 4 में दिया है एक्स आई कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड है जेड के कैप प्लस वाई जे कैप. तो इसे देखते हैं अप्लाई करके. नेट फोर्स इज आवर क्यू एक्स आई कैप एंड क्यू वी आई कैप क्रॉस जेड के कैप प्लस वाई जे कैप. तो फाइनली हमें मिल रहा है क्यू एक्स आई कैप माइनस क्यू वी जेड जे कैप प्लस क्यू वी वाई के कैप. यहाँ पर एक के कैप आ रहा है, के कैप आ रहा है मतलब ये जेड प्लेन तक चला गया. तो क्वेश्चन में तो दिया है कि वो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो ऑप्शन 4 नहीं होगा. तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज आवर ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. Our next question is question number 88. Question number 88 is a particle starts from origin at t equal to 0 second with a velocity v naught, 4 I cap, 4 j cap and moves in xy plane with an acceleration a vector 10 meter per second square I cap plus 4 meter per second square j cap. The speed of the particle at t equal to 2 second is close to. हमें t equal to 2 second पे पार्टिकल का स्पीड फाइंड आउट करना है. तो क्या गिवन है. वी नॉट इनिशियल वैल्यू पता है 4 आई कैप 4 जे कैप, एक्सेलरेशन पता है. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इन एक्स प्लेन वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी. तो वाइल टाइम इज 0 सेकेंड, our ux is 4 meter per second, ax is 10 meter per second square, uy is 4 meter per second and ay is 4 meter per second square. So by putting these values at t equal to second, vx is equal to ux plus axt. तो वैल्यू पुट करने पे हमें मिल जाएगा vx 24 मीटर पर सेकेंड. vy का vy निकालने के लिए uy एंड ay एंड t का वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेगा vy इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड. तो v इज इक्वल टू 24 आई कैप प्लस 12 जे कैप मीटर पर सेकेंड. तो उसका स्पीड फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो वो रूट ओवर ऑफ 720 आएगा. वो 26.8 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा. तो 26.8 कहाँ पर है. ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट. 89. Two monochromatic radiations of blue and green color of the same intensity are in turn incident on a photosensitive surface. Which one of the following is the correct statement? ब्लू और ग्रीन कलर को लेना है, इंटेंसिटी सेम है. क्या क्या देखना है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसका ज़्यादा किसका कम ये देखना है हमें. हमें तो पता है वेवलेंथ ग्रीन और ब्लू में से अगर हम ब्लू और ग्रीन लाइट को कंसिडर करेंगे तो वेवलेंथ ग्रीन का ज़्यादा होता है. अगर ग्रीन का वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ग्रीन का कम होगा. तो यहाँ ये पता चल रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट इज मोर. एंड इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट. अगर इंटेंसिटी क्वेश्चन में सेम दिया है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी सेम होगा. अब ऑप्शन में देखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ऑप्शन नंबर 1 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर ब्लू लाइट विल बी मोर. हाँ फ्रीक्वेंसी तो मोर है बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो मोर नहीं हो सकता, दोनों का सेम होना चाहिए. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं.
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी सेम बट द करंट विल बी स्मॉलर फॉर ब्लू लाइट. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम तो नहीं होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा. अब थर्ड एंड फोर्थ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर ब्लू लाइट विल बी लेस. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ब्लू लाइट तो लेस नहीं होगा, मतलब ये गलत है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी लेस बट फोटो करंट फॉर ब्लू लाइट विल बी मोर. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ब्लू लाइट लेस दिया गया है, ये भी नहीं होगा. तो बच्चा ऑप्शन नंबर 1 जो कि 100% तो सही नहीं है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर ब्लू लाइट विल बी मोर दिया गया है. बट जो पॉइंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ब्लू लाइट विल बी मोर, ये सही है. तो ये 50% सही है इसका फर्स्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 100% सही नहीं दिया गया है. तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a composite wire is made by welding together two wires end to end. The wires are made up of the same material with their diameters in the ratio 1:2. This wire is used as a sonometer wire kept under tension with the welded point midway between the two bridges. If the joint is a node, when stationary waves are set up in the wires, the ratio of loops formed in the wires. हमें जो loops form हुए उनका ratio निकालना है, number of loops. तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे एक 2 वायर लेंगे, उनका सपोज उनका डायमीटर का रेशियो 1:2 दिया गया है, तो हम रेडियस का रेशियो भी 1:2 ही होगा. तो एक का रेडियस स्मॉलर एंड दूसरे का रेडियस टू स्मॉलर ले लेंगे. इफ N1 एंड N2 बी द नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म्ड इन द वायर्स ऑफ रेडियस R एंड 2R रेस्पेक्टिवली, देन हमें क्या मिलेगा. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F1 is equal to N1 by 2L root over of T by mu1, where mu1 is mass per unit length of first wire and frequency F2 होता है N2 by 2L root over of T by mu2. mu2 is mass per unit length of wire 2. तो mu1 and mu2 mass per unit length of wires. mu क्या होता है, mass per unit length. mass per unit length means mu का वैल्यू हो जाएगा rho pi r square which is rho mu is directly proportional to radius. तो अब वेल्डेड वायर कंटिन्यूस है, तो हम फ्रीक्वेंसी को सेम कंसिडर करेंगे. F1 is equal to F2. देन व्हाट विल हैपन एन. तो अभी हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमें N1 डिवाइडेड बाई N2 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ mu1 बाई mu2 मिल जाएगा, विच इज रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, दैट इज r बाई 2r. तो आंसर हो गया 1/2. आंसर हो जाएगा 1/2, विच इज ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे ख़त्म होता है. सो वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 90. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल टू वॉच अपकमिंग वीडियोज़. थैंक यू.